about the author. We will start here about the author. Okay. Now I want to tell you about the author. Ian Foster, 1879 birth and 1970 death. A noted English author and critic, wrote a number of short stories, novels and essays. His first novel, Where Angels Fear to Tread, was published in 1905. This was followed by Howard's and A Passage to India and other well-known works. The Hill of Devi, a portrait of India with a commentary, appeared in 1953. The essay presented here is an extract from chapter 2 of Aspect of the Novel. Now, students, I want to tell you about the author. It means Ian Foster जो है क्रिटिक भी है और ऑथर इट मीन्स राइटर भी है. क्रिटिक इट मीन्स who do critical comments on other chapters and writers is called critic. Okay, wrote a number of short stories. He has written a number of short stories, novels and essays. उन्होंने बहुत सारी stories, novels और essays लिखे. His first novel, Where Angels Fear to Tread, and this is about the first novel, Where Angels Fear to Tread. Okay, was published in 1905. When it is published, it published in 1905. This was followed by Howard's and A Passage to India. Okay, then and other well-known works. Also, here only one has been described. The Hill of Devi, a portrait of India, with a commentary, appeared in 1953. Now, I want to tell you that the Hill of Devi, a portrait of India, with a commentary, appeared in 1953. Now, the author is telling you about the period 1953, while the work of the Hill of Devi, a portrait of India with a commentary. Okay, then essay presented here an extract from chapter 2 of Aspect of the Novel. Okay, so here is the description, which is extract from the extract का मतलब होता है taken. Okay, and it has been taken from where? It is taken from the Aspect of the Novel. Okay, students, is it clear to you? Hello? Honik? Yes, ma'am. Yes, is it clear to you? हाँ, तो Yes, आप ma'am. बताइए मुझे अर्पिता, इसका वर्क टाइम क्या बताया है इसमें? You should noted it. अर्पिता बताइए आप. 1879 वर्क टाइम. And what is that time? Isha? Ma'am, Hello? 1970. 1970. 1970. Yes. So here 18 and here is 19. Next, what is the book from where? What is the book's name? From where this chapter has been taken? कहाँ से ये चैप्टर लिया गया है? Tell me the name of the book. क्या नाम है इसका? Hello students, tell me. बताइए. प्रतिभा. Aspect of the novel. Aspect of the novel. Okay. So now we will start. The story. This chapter name is The Story, and E.M. Foster is the writer of it. So now we will start
from first paragraph, we shall all agree that the fundamental aspect of the novel is its storytelling aspect. What we shall voice are accent and different tones, and it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusions will depend. In this essay, the author E.M. Forster wants to tell us about the story which is here described. We shall all agree. Now the author is saying we all agree with it that the basic, it means fundamental, it means basic aspect of the novel. It means what is novel? Can you tell me anything about novel? Novel का मतलब क्या होता है? Hello, do you know what is the meaning of novel? Students, you don't know anything? बताइए, नॉवल का मतलब क्या है? सुनिधि बताइए आप, या फिर जो भी बता सकता है, एटलीस्ट दे शुड टेल अबाउट नॉवल. क्या होता है नॉवल का मतलब? बुक होती है जिनमें स्टोरीज होती हैं. स्टोरीज होती हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्टोरीज, किस तरह की स्टोरीज है जो नॉवल कहलाती हैं? नॉवल में और स्टोरी में अंतर होता है भाई. स्टोरी और नॉवल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड नॉवल? कैन यू टेल मी? हेलो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द डिफरेंस विद नॉवल एंड स्टोरी? मैम, नोवेल के अंदर लोगों की इमेजिनेशंस होती है, वो नोवेल्स रियल नहीं होते. स्टोरी इज ऑल्सो एन इमेजिनेटिव पार्ट. सो हाउ कैन यू से कि स्टोरी में, वो नॉवल में इमेजिनेशन होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड नॉवल? मेन डिफरेंस आपको बताना है. स्टोरी और नॉवल दोनों एक ही चीज होती है. हाँ बताइए लक्ष्मी. देखिए, ये टर्म जो है लिटरेचर का टर्म है. आपको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि स्टोरी क्या होती है और नॉवेल क्या होती है. मैम, नॉवेल उपन्यास होती है. हाँ, जो हिंदी मीनिंग नहीं बताना है आपको. वी नो वेरी वेल, उपन्यास होती है नॉवेल. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड नॉवेल? इट इज द टर्म ऑफ लिटरेचर. हाउ विल यू टेल अबाउट दिस? हेलो, nobody knows? मैम, जो नॉवेल्स, हाँ जी मैम जो यस मैम जो नॉवेल्स होता है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसके अंदर एक लॉन्ग स्टोरी. ओके, हाँ. और मैम जो स्टोरीज होती है वो शॉर्ट होती है, उनपे छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है. और नॉवल में एक तो आपने बोल दिया लॉन्ग स्टोरी होती है नॉवल. एंड एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी अबाउट नॉवल? और कुछ ऐसा है जब आपको टर्म लिखने के लिए आते हैं, इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू राइट इन लिटरेचर. इट इज नॉट सिंपल जस्ट लाइक इंग्लिश कंपल्सरी, यू नो. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू कि जब कभी टर्म लिखने के लिए आते हैं तो यू शुड नो हाउ विल यू राइट. ओके, so this is the meaning. Long story is the meaning here. First thing, okay, related with the novel. समझ में आया बच्चों? First thing is expressed here, and other thing. Lakshmi, can you tell me second thing about novel? आपका ये exact answer है. Can you tell me anything else? बताइए. मैम, नॉवेल को लिखने में या फिर पढ़ने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है. That is not the aspect because of time. तो देखो ऐसे लगेगा ही. टर्म लिखने के अंदर मैं आपको बता रही हूँ what is the name. सिंगल हीरो. देखिए, फर्स्ट थिंग इट इज वेरी लॉन्ग. सेकेंड थिंग सिंगल हीरो. ओके, एंड हीरोइन. इसमें सिंगल हीरोइन होते हैं. और मान लीजिए कि अगर सिंगल हीरो नहीं भी है,
2 हीरोज हैं, 1 and 2 हीरोज हैं, लेकिन देन उसके टाइम पर अगर 2 हीरोज हैं, ओके, तो भी आप में मेन जो है वो सिंगल हीरो होगा एंड स्टोरी इज रिलेटेड एंड राउंड विद हिम, ठीक है। मेनली हेरोइक डीड्स, हेरोइक डीड्स यू नो क्या होता है हेरोइक डीड्स? डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेरोइक डीड्स? लक्ष्मी, कैन यू टेल मी अबाउट द हेरोइक डीड्स? कहां से ये बना है वर्ड हीरोइक? कैन यू टेल मी अबाउट दिस? मैम हीरो यस, जो मेन कैरेक्टर हो स्टोरी का। yes, main character. Then hero is related with the heroic deeds, clear? Then hero is the main part and all story is related with him. It means all aspect and all the things which are going on in the novel are connected with the hero and heroine, okay? So heroic deeds, whatever the heroic deeds, all are related with the hero, okay? So hero and his long story here in single hero story and all the incidents and accidents are related with him, so this one is called novel. जब आप नॉवेल का टर्म एक्सप्रेस करेंगे, आप लिखने के लिए आएगा आपका, कई बार आपका नॉवेल का टर्म आता है कि मतलब टर्म आता है, then you should write what is novel, clear? आपको समझ में आ गया कौन कौन सी चीजें लिखनी होगी टर्म नॉवेल के अंदर? यस। सो नाउ फर्स्ट थिंग वी शैल ऑल एग्री दैट द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसके एस्पेक्ट है? ये फंडामेंटल नॉवेल के, ठीक है। एंड इट नॉवेल इज इट्स स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट। फर्स्ट एस्पेक्ट यहाँ पर है, आपको बताना चाहिए नॉवेल के अंदर स्टोरी टेलिंग, पूरी स्टोरी ही है और उसी के बारे में बताया जाता है, क्लियर? एस्पेक्ट बट B-cell वॉइस आर एसेंट इन डिफरेंट टोन्स। देखिए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एसेंट एंड एसेंट? ASSENT, एसेंट, ACCENT, 2 words are here. Lakshmi and Honit, do you know the meaning of them? बताइए क्या है ये? मैं एक्सेंट बोलने का तरीका। ASSENT का मतलब तो किसी को परमिशन देना। और इस एसेंट का मतलब क्या है? देखिए, आपने यहाँ पर we shall voice our assent in different tones. एसेंट यहाँ पर आपका परमिशन देना नहीं है, ओके? यहाँ पर मीनिंग है आपका एसेंट का वे ऑफ टॉकिंग। ये टर्म आपका एसेंट से रिलेटेड है। जब एज ए नाउन यूज करते हैं और एज ए वर्ब यूज करते हैं, 2 टाइप से मैंने आपको बताया ना, एडवाइस और एडवाइस का अंतर। हेलो लक्ष्मी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एडवाइस एंड एडवाइस? बताइए। यस मैम। So that in the same manner, advice and advise, both are interlinked with each other. It means this one is noun and this one is, what is this one is? This one is verb. Clear? In the same manner, here Yes, is ma'am. assent and assent. Both are here interlinked, and these are only one, मतलब one word. And assent here meaning verb and assent here meaning noun. Clear? समझ आ गया कि नहीं अभी तक? All the students should give me answer. Hello? जल्दी बोलिए, आप लोगों को आपका बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास ज्वाइन करके जाने की जरूरत नहीं है। क्लास में आप रहिए, आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए और आपको मेरे को आंसर देना पड़ेगा। लक्ष्मी? यस। होनित? यस मैम। बहुत परेशान हो क्या होनित? आंसर शुड बी गिवन एग्जैक्टली। यस,
Isha, have you understood all the things? Isha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. Next, who is here? Sunidhi. Sunidhi, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, beta. Simran. Who is Simran here? मैम साक्षी। Sakshi, have you understood all the things? यस मैम। Subho. Yes, ma'am. Pratibha. Yes, If ma'am. I am standing here, then all the things should be clear to you. Because of it is very necessary. Whatever I am telling, you should write in your copies, and it is related to your 12th class also. And if in this subject you want to be PG and also any other thing, here is future of you. So that is why you should know all the things clearly, and you should write clearly also. Clear? So it is not compulsory. English compulsory is the common subject, but here is literature. So that is why it is very necessary to learn each and every aspect and each and every things. Clear बच्चों? पता है ना ये बात? हेलो. यस मैम। हाँ, तो आपका ये सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट को ऑप्शनल है ये आपका. दैट इज वाई कंपल्सरी नहीं है, जिसमें आपको ठीक है भाई पासिंग मार्क्स आ गया और कोई मतलब नहीं निकला. इसलिए इस पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए. तभी एक पैराग्राफ के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं. क्लियर टू यू? देन डिफरेंट टोन्स and it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusions will depend. So now author wants to tell here that it is on the precise tone of voice. Precise, it means exact. Okay, exact tone of voice यानी आवाज, exact voice आपकी. ठीक है? Then we employ not that our now that our subsequent conclusion will depend. Here what is author wants to tell us that what is the basic aspect of novel and its storytelling aspect. What visual voice are assigned in different tones. देखिए, जब हम कभी नॉवल लिखते हैं या नॉवल पढ़ते हैं तो जो इसका टोन होता है सबका डिफरेंट टोन होता है. डू यू नो? एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट इज, एंड इट इज ऑन द प्रिसाइज टोन ऑफ वॉइस. और इसका जो टोन ऑफ वॉइस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? देन we employ now that our subsequent conclusion will depend. Employ now it means अब जो इसका implementation है that the subsequent conclusion, जिसका total conclusion here is the subsequent का मतलब होता है निचोड़ निकलना. यानी कोई चीज जैसे आप जूस बनाते हैं तो then what will happen there कि आपका जितना भी फ्रूट का इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है फ्रूट का, वो सब उसके अंदर निकल कर आ जाता है जूस के अंदर. सो दैट इज सब्स्टिट्यूट का मतलब यही हुआ. एंड कंक्लूजन विल डिपेंड. और इसके ऊपर क्या डिपेंड होगा? कंक्लूजन. इज इट क्लियर टू यू? स्टूडेंट्स, जवाब तुरंत आना चाहिए मेरे पास में. ये बात याद रखिएगा, जितना हम इतनी चीजें आपको समझाते हैं then you should give me answer. Hello, is that clear all of you? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Then Yes, जिनका ma'am. एम है ना पढ़ाई, they should learn and they should give answer. और जो नहीं दे पाते हैं, it means no aim of their life. क्योंकि अभी आपको जिस तरीके से लिटरेचर पढ़ाई जाती है एक एक लाइन का, बिल्कुल इस तरीके से लिटरेचर नहीं पढ़ाई जाती है. I am telling you each and everything here. Now let's listen to the three boys. Okay, if you ask one type of man what does a novel do, देखिए, let us listen to three voices. हमें तीन आवाजों को सुनना होगा. If you ask one type of man, अगर तुम एक व्यक्ति से, एक तरह के व्यक्ति से बात करते हो, पूछते हो what does a novel do, कि नॉवल क्या करती है, he will reply placidly.
नाउ प्लेसिड, ये बताइए प्लेसिड क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? आपको मैंने कंपलसरी का जब चैप्टर पढ़ाया था, आर्क वाला जो चैप्टर था लास्ट वाला, उस चैप्टर में ये प्लेसिड वर्ड आया है किंग के लिए, यू नो। तो इतना मुझे याद है, तो आपको क्यों याद नहीं है? अगर नहीं याद है तो आप याद करिए और बताइए मुझे। लक्ष्मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? मैम शांत। यस, वेरी गुड सुरभि। नाउ सुनिधि, सॉरी, प्लेसिडली मतलब शांति से। अब इसमें शांत वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, नॉवल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस इसके अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इस सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज है बेटा? ये आपका प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब हुआ जो शांति से डिस्क्रिप्शन होता है, वन बाय वन नॉवल, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो दीज ऑल द थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड देयर। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? हेलो, एंड द टाइम इज Yes, ओवर नाउ ma'am. आई थिंक। लक्ष्मी, Yes. time is over. So tomorrow we will discuss this chapter. Thank you. Have a nice day all of you. Thank you, ma'am. Okay.